دلی کے بڑے شاہ جی کی بیوی بانجھ تھی۔ میری عمر 16 سال کی تھی۔ شاہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری ماں کو کہا، اس کا نکاح میرے سے کر دو، اپنا وارث لے کر میں اسے طلاق دے دوں گا، بدلے میں بہت بڑی رقم دوں گا۔ میری ماں مان گئی۔ میرا نکاح بڑے شاہ سے ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے کہنے لگے، مجھ سے کسی رحم کی امید نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیگم سے بہت پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے سے اور کسی چیز کی امید نہ رکھنا۔ پھر بہت بے دردی سے انہوں نے السلام علیکم۔ میں آج کافی سال بعد شاہ حویلی میں آئی ہوئی تھی۔ جب بڑے شاہ کی شادی تھی تب میں اس حویلی میں آئی تھی اپنی اماں کے ساتھ، اور آج چھوٹے شاہ کی شادی تھی۔ حویلی میں بہت زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، پر مجھے نہیں معلوم تھا یہاں آنے کے بعد میری زندگی بالکل ہی بدل جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ شاہ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ چھوٹے شاہ کی مہندی تھی اور مہندی کی پلیٹیں میں سجا رہی تھی۔ وہیں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو سامنے بڑے شاہ کھڑے ہوئے تھے، مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر تو فوراً سے میں نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ وہ مجھے گھورے جا رہے تھے۔ ان کی تپش کی نگاہیں میں نے اپنے آپ پر محسوس کی تھی۔ میں نے کہا، شاہ جی، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ کہنے لگے، تم کون ہو؟ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں بھلا ان کے سامنے اپنا کیا تعارف کرواتی؟ آخر میں نے ہمت کی اور کہا، اس حویلی کی ملازمہ کی بیٹی ہوں۔ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں ان سے بات کر پاتی، لیکن پھر بھی میں نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ وہ مجھے بس دیکھے جا رہے تھے، پھر پوچھنے لگے، کون سی ملازمہ کی؟ میں نے اپنی اماں کے بارے میں بتایا۔ اچانک ہی وہ قدم بڑھاتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ میں ڈرتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ اچانک ہی میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے سکون کا سانس آیا تھا۔ تقریباً کافی سال ہو گئے تھے بڑے شاہ کی شادی کو، لیکن میں نے اماں سے یہی سن رکھا تھا کہ ان کی بیوی بانجھ ہے اور انہوں نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے میں یہی سوچ رہی تھی کہ کافی ٹائم بعد اماں وہاں آئی۔ بہت پریشان لگ رہی تھی، ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اماں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تم ابھی یہاں سے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا، اماں دیکھیں، رات کے اس پیر یہاں سے کیوں جاؤں گی؟ اماں کی آنکھوں میں نمی تہر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس تم یہاں سے چلی جاؤ، جتنا تجھے کہا ہے اتنا کرو۔ مجھے اماں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں وہاں سے چلی گئی، لیکن جیسے ہی شاہ حویلی میں شادی ختم ہوئی، اتنے دن تک اماں بہت پریشان گھومتی رہی اور میرا رشتہ دیکھنے لگ گئی، حالانکہ میری عمر 16 سال کی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا رشتے کی جلدی لگ گئی تھی۔ اس دن میں گھر پہ اکیلی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے بڑے شاہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے، گھر پہ اکیلی ہو کیا؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور ان کی بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، سائڈ پہ ہٹو۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ وہ کہنے لگے، ہاں کام ہے، تم اندر نہیں آنے دوں گی؟ یہ سب باتیں یہاں پر ہی کرو گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہے تھے۔ میں سائڈ پر ہو گئی تو وہ گھر پہ داخل ہو گئے اور سامنے پڑی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، کب تک تمہاری ماں واپس آئے گی؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں نے سادگی سے انہیں جواب دے دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ جیسے ہی اماں گھر میں آئی، انہیں اپنے گھر میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔
अम्मा के चेहरे पर पसीना आने लगा था। पहली फुर्सत में वो कमरे में आई, मुझे देखा। मुझे देखकर उन्होंने सुख का सांस लिया। कहने लगी, तुम्हें शाह ने कुछ कहा है क्या? मुझे सच सच बताओ। मैंने नफ़े में सर हिलाया और कहा, अम्मा आप इतना घबरा क्यों रही हैं? इतना परेशान क्यों हो रही हैं? उन्होंने भला मुझे क्यों कहना है और क्या कहना है? अम्मा बाहर शाह के पास चली गई। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ी अम्मा और शाह की बातें सुन रही थी, लेकिन जो बात शाह ने कही वो सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो अम्मा से कह रहे थे, जितनी मर्जी मुझसे रकम ले लो, मैं तुम्हारी बेटी से अपना वारिस पैदा करवाना चाहता हूँ। मुझे इस लड़की से अपना वारिस हासिल करना है। आज तक मुझे कोई लड़की ऐसी नज़र नहीं आई जिससे मैं निकाह कर सकूँ। ये मुझे इस काबिल लगी है कि ये मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। जैसे ही मुझे मेरी औलाद मिल जाएगी मैं इसे तलाक दे दूँगा। और मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा था, मुझे तो बड़े शाह को देखकर ही खौफ आने लगता था, और वो मुझसे शादी की बात कर रहे थे। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मुझे लगा था अम्मा इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, शाह के साथ मेरा निकाह नहीं करेंगी। लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब अम्मा कहने लगी कि आप कल शाम ही आकर इसका निकाह करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मैं नफ़े में सर हिलाने लगी। जैसे ही शाह हमारे घर से गए, मैं अम्मा पर गुस्से से टूट पड़ी। मैंने कहा, अम्मा आप जानती हैं ना वो मुझसे कितने बड़े हैं। अभी मैं सिर्फ 16 साल की, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं अम्मा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। अगले दिन अम्मा ने मेरे पास सुर्ख रंग का जोड़ा रख दिया। कहने लगी, ये पहन लो, तैयार हो जा, बड़े शाह आ रहे हैं, वो तुझे निकाह करके अपनी हवेली ले जाएंगे, वहाँ ऐश करेगी। मैंने कहा, अम्मा मुझे नहीं रहना उनके साथ। आपको पता है ना कि ये शाह और अमीर लोग कैसे मिजाज के आदमी होते हैं। मुझे नहीं रहना उनके साथ, मुझे नहीं करनी शादी। मैं रोती हुई अम्मा के साथ लिपट गई और जी भर के रोई, और मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि काश आज मेरे अब्बा ज़िंदा होते, मुझे इस अजियत और तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़ता। जब मैं शाह हवेली आई तो शाह हवेली के मकीनों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। बड़ी बेगम मुझे गुस्से में घूरे जा रही थी। बड़े शाह जी मेरा बाजू पकड़े बड़ी बेगम के पास ले गए। कहने लगे, अम्मा साईं, इसके बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा अपना वारिस लेकर। मैंने कौन सा हमेशा इसे अपने साथ रखना है। इस लड़की से सिर्फ वारिस हासिल करना चाहता हूँ, फिर इसे तलाक दे दूंगा। बड़ी बेगम मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हें अपना वारिस ही हासिल करना था तो किसी ख़ानदानी लड़की से शादी करते। इस नीच ख़ानदान की लड़की से शादी करना ज़रूरी था क्या? जानते हो मुझे ऐसे नीचे लोगों से किस कदर नफ़रत है। इनको तुम नहीं जानते। ज़रूर इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा, तभी तो तुमने इसके साथ शादी कर ली। इसकी माँ भी बड़ी चालबाज औरत है। अपनी माँ बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आज तक मेरे लिए ऐसे अल्फाज किसी ने यूज़ नहीं किए थे जैसे बड़ी बेगम इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मैं क्या कर सकती थी? इस जहन्नम में धकेलने वाले भी मेरी अपनी माँ ही थी। मैं किसी और से क्या गिला करती। थोड़ी देर बाद शाह कमरे में दाखिल हुए और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। अगर शाह को मेरे से औलाद ही हासिल करनी थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की, और फिर कमरे को इस कदर क्यों सजाया गया? मैंने नफ़रत भरी निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा। उसने ला के मुझे बेड पर बिठाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे, और मेरा पूरा वजूद यूँ था जैसे मेरे वजूद में जान ही ना हो। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने आकर बैठे। कहने लगे, तुम जानती हो मैंने तुमसे निकाह क्यों किया है? मुझे किसी किस्म की मोहब्बत या नरमी की उम्मीद ना रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारी माँ को दे दी है। जब तक तुम मेरे पास रहोगी, इस हवेली में रहोगी, तुम्हारा अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तुम किसी से नहीं मिल सकती।
तुम्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। जितनी जल्दी मुझे खुशखबरी सुनाओगे इतनी जल्दी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। मुझे बहुत जल्द खुशखबरी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा मुझे मेरी बीवी प्यार ही नहीं करेगी और मेरे से बात भी नहीं करेगी। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। उनकी नज़र में मैं एक मुलाज़मा की हैसियत से थी, या फिर उससे भी कम, क्योंकि वो जिस अंदाज़ में मुझसे बात कर रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस हो रहा था। मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे उनसे खौफ आने लगा था। मैं उनसे दूर दूर रहने लगी थी। उन्हें बस मेरे वजूद से बच्चा हासिल करना था। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो आज ही मेरे से बच्चा पैदा करवाते और आज ही मेरे से जान छुड़वा लेते। मुझे लगा था कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके मेरे कमरे से बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर सो गए और मैं रोती हुई उनकी तरफ देखे जा रही थी। देखने में वो किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा हसीन था। ऐसे शख्स का तो हम जैसी लड़कियां ख्वाब में भी नहीं देख सकती। इस वक्त वो मेरे पास मौजूद था, मेरे बहुत करीब। मेरा उस पर हक भी था, क्योंकि मैं उसके निकाह में थी। मैं बस उसे देखती रही और बेसाख्ता उस अपने हाथ बढ़ाते हुए उनकी गाल को छूने लगी, तो अगले ही लम्हे मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो जाग जाते तो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करते, लेकिन मेरा दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा था। मेरे आंसू थम गए थे। मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रही थी। ऐसे हसीन शख्स का तो बंदा खुशी खुशी हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। वो गहरी नींद सो रहा था। उसे एहसास नहीं था कि वो मुझे कितनी अजियत और तकलीफ़ दे चुके हैं, और फिर खुद सुकून की नींद सो रहे थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थे। अभी मैं उठकर बैठी ही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। छोटी बीबी कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे के रंगत उड़ने लगे। वो जिस अंदाज में मुझे देख रही थी, ये बड़े शाह की बीवी थी, और एकदम से कमरे में दाखिल हुई। उसने मेरे हाथों और मेरे बालों से पकड़ा और फिर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई और कहने लगी, तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। कहने लगी, रात भर मैं रोती रही हूँ। रात को तुम मेरे बिस्तर पर थी, मेरे शौहर के पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब आने की? उसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर की तरफ लेके जा रही थी। अचानक ही शाह आ गए। उन्हें देखते ही मैं इस कदर खौफज़दा थी कि उनके सीने से लग गई और कहा कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार देंगे। उन्होंने जल्दी से मुझे खुद से अलग किया। शाह ने बाजुओं के सहारे से अपने करीब किया और कहा, मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तुम क्यों इतना डरती हो, क्यों इतना घबराती हो? क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पर कोई शक है क्या? मैं इस लड़की से सिर्फ बच्चा हासिल करना चाहता हूँ और मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये एक सिर्फ नौकरानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुम इतना मत डरो और सोचो भी नहीं। वो कहने लगी, मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोते हुए बोली। वो कहने लगे, ठीक है, मैं इसे क्वार्टर में जगह दे दूँगा, ये यहाँ नहीं रहेगी। उसे अपने साथ लगाए सीने से वो यहाँ से चले गए। मैं उस शख्स को पीछे से बस देख ही रही थी। मुझे रात का रवैया उनका याद आने लगा। न जाने क्यों मुझे उस औरत से जेलसी फील होने लगी थी। हालांकि ना तो बड़े शाह से मोहब्बत करती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनसे इतनी ज़्यादा जेलसी फील होने लगी थी। न जाने क्यों इस लड़की को उनके साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कितनी बेदर्दी से मुझे खुद से अलग किया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक ही बड़े बेगम पीछे से आई। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा, मेरी कलाई को बहुत ज़ोर से अपने हाथ में दबोच लिया और घसीटने वाले अंदाज में न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैं शाह को पुकारते हुए कहा, शाह जी प्लीज़ बात सुने, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो नहीं आए। फिर उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से हाथ से पकड़ा कि मेरे हाथ की कलाइयाँ दुखने लगी और फिर मुझे वो ज़ोर से पकड़कर एक
स्टोर में ले जाकर उधर फेंक दिया और फिर मुझे ज़ोरदार थप्पड़ लगाया कि मेरी गाल ही सुन हो गई। मैं फर्श पर जा गिरी। वो कहने लगी, तुम्हें मैं बताऊंगी तुमने कितनी बड़ी गलती की है इस घर की बहू बनकर। तुमने मेरी भांजी का हक मारा है। इस घर में शाह की बीवी तुम नहीं बन सकती। तुम्हारी हैसियत 2 टके की मुलाजमत से भी बदतर कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और हवेली में मुझ पर हर तरह के जुल्म होने लगे। बड़े शाह जी को तो बस सिर्फ मुझसे बच्चा ही चाहिए था और अब मैं दुआ करने लगी थी कि काश उनको बच्चा ही ना हो। वो तरसते रहे इस खुशी के लिए। कोई औरत भी उनके लिए बच्चा पैदा ना कर सके। खुदा उन्हें औलाद ही ना दे। उन्हें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी अपनी औलाद की। मेरे आंसू बह रहे थे। मैं क्वार्टर में पड़ी उस खस्ता हाथ कमरे में पड़ी थी, बस औंधी लेटी हुई थी। मुझे कोई होश नहीं था। रोने में मैं इस कदर मगन थी कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है। मैंने एकदम उठ के देखा तो सामने शाह बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों से और आंसू आने लगे। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए। कहने लगे, क्या है, तुमने ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत है? मेरे घर वालों को तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, इस वजह से ऐसा रवैया तुम्हारे साथ रखते हैं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम औलाद दोगी तो तुम बहुत जल्द जा सकती हो। जितनी जल्दी तुम मुझे खुशखबरी दोगी इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से आज़ादी हो जाएगी। मैंने कहा, ये सब कुछ मेरे बस में तो नहीं है ना। क्यों आप मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, इतनी अजियत दे रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई और औरत भी आपको मिल सकती थी। वो कहने लगे, नहीं, मुझे कोई हसीन और अच्छी नहीं लगी थी जो कि मेरी औलाद पैदा कर सके। तुम बहुत ज़्यादा हसीन हो, इतनी कि तुम्हें टूट के चाहने को दिल करता है। तुम्हारा सरापा मुझे बहकाने लगता है। जानती हो, जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। उस रात जी चाहा था कि काश तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरी बेगम के हिसाब से होती और मैं हर ख्वाहिश तुमसे पूरी करता। वो न जाने किस अंदाज में बोले जा रहे थे और मैं बस उनकी चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा शख्स मुझसे ऐसी बातें कर सकता है। अगले ही लम्हे वो होश की दुनिया में आए। उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या बातें कर गए हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा आने लगा था। कहने लगे, 2 टके की मुलाजमा हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। ये कहकर वो फिर से मेरे ऊपर वही जुल्म करना शुरू हो गए थे। न जाने उन्हें मुझसे औलाद चाहिए थी या फिर मेरा जिस्म, मुझे समझ नहीं आ रही थी। चंद दिन तक तो मैं एक क्वार्टर में रही। सब कुछ चलता रहा। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे ऊपर बहुत जुल्म होने लगा था। 2 दिन होने लगे, मुझे अपनी तबीयत में बहुत अजीब सा महसूस होने लगता था। मैं कुछ भी खाती तो मुझे उल्टी होने लगती थी। न जाने मुझे क्या हो गया था। रात का वक्त था। बड़े शाह कमरे में आए, मुझसे कोई बात नहीं की। न जाने उन्हें क्या हुआ था। मैंने कहा, आप ठीक हैं? मेरी बात सुनकर उन्होंने नफ़े में सर हिला दिया। कहने लगे, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। प्लीज़ कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। मुझे बुलाना मत, मैं आराम करना चाहता हूँ। न जाने उन्हें क्या हुआ था। उनकी हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ठीक हैं। मुझे कहने लगे, प्लीज़ एक गिलास पानी पिला दो। मैं बेड से उठी। अचानक ही मेरा सर चकराया। इससे पहले मैं गिरती, जल्दी से शाह ने मुझे थाम लिया था। कहने लगे, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उन्होंने मेरा ठंडा होता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। कहने लगे, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आपकी बेगम को पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगी। मेरी बात अधूरी थी। वो कहने लगे, तुम भी मेरी बीवी है, समझ आई, और मेरी जिम्मेदारी भी हो। ये कहकर मुझे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले आए और मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स किस किस्म के इंसान है। मुझे बिल्कुल भी उनकी समझ नहीं आ रही थी। जब वो मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया, तो ये सुनकर तो उनके पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली थी।
اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی میں نے شاہ سے دور چلے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شاہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ نئی نئی جوانی کے دن تھے۔ ایک شخص جو بہت زیادہ حسین تھا وہ میرا شوہر تھا۔ اس سے محبت ہو جانا شاید فطری عمل تھا، اس وجہ سے میں بہت خوش تھی۔ کاش کچھ سال ان کے ساتھ اور رہ سکتی، یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے کی طرف لے کر جانے لگے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کی فیملی والے پھر باتیں کریں گے؟ وہ کہنے لگے، کوئی بھی بات نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ مجھے اپنے روم میں لے کر آئے۔ ان کی بیوی ان کے روم میں نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلے ہی پل شاہ جی نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا، کچھ بھی ہو جائے میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم جانتی ہو نا میں اپنے بچے کے لیے کتنا ترسا ہوں، کتنا تڑپا ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور ہر حال میں تمہیں اس بچے کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں بس حیرت سے ان کو دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ انہیں صرف اپنے بچے کی پرواہ تھی، میری نہیں۔ میں نے بالکل بھی حیرت سے دیکھتے ہوئے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنا بھی خیال رکھوں گی اور آپ کے بچے کا بھی خیال رکھوں گی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی ان کو کہ ان کی بہت کم عمر ہے، ان کا ابورشن کروا لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، یہ اپنا بہت خیال رکھیں گی، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اگلے ہی صبح میں سو رہی تھی، شاہ جی نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، اٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، جلدی سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی جہاں انہوں نے سہارا دے کر مجھے اپنے اٹھایا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے، نہیں، تم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کتنے احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی، وہ کتنا زیادہ میرا خیال رکھتے تھے۔ مجھے ان کی عادت سی ہونے لگی تھی، ان کے محبت بھرے رویے کی عادت ہونے لگی تھی۔ یہ سوچے مجھے پاگل کرنے لگی تھی کہ یہ سب میرا بچہ مجھ سے لے لیں گے اور پھر مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگی کہ یہ لوگ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے اور پھر مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ تو میں بہت پریشان رہنے لگی، تو اس سے میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ تو ڈاکٹر کے پاس شاہ جی مجھے لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت ڈپریشن میں ہے، یہ کسی بات سے بہت پریشان ہے، اس وجہ سے ان کے بچے کو بھی خطرہ ہے۔ تو شاہ جی مجھے محبت سے کہنے لگے، کیا پریشانی ہے؟ میں تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا، لیکن خدا کے لیے تم مجھے اپنی اذیت بتاؤ، تم میرے بچے کو اذیت اور تکلیف نہ دو۔ میں حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہی، اس سے اب بھی اپنے بچے کی بہت فکر تھی، اس سے میری بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کون سی اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی، جس ماں کو پتہ ہو کہ اس کو اس کی اولاد ہی نہیں دی جائے گی، اس سے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد نے اپنی زندگی میں شامل کیا، نہ جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کاش کہ شاہ خود ہی سمجھ جاتے مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے بتانا نہ پڑتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میں بس یہی سوچتی رہی۔ رات کے وقت شاہ میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہنے لگے، کچھ دنوں کے لیے مجھے شہر سے دور جانا ہوگا، تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی لاپرواہی کرو جس سے میرا بچے کو نقصان ہو اور میں اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں۔ میں بس اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی کہ اسے کتنی زیادہ فکر ہے۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو میرا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، کاش کہ وہ یوں ہی مجھ سے محبت کرتا، ساری عمر کرتا، ہمیشہ کرتا۔ میں اس کی طرف دیکھتی اور محسوس کرتی کہ کاش یہ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتے۔ اس نے کہا کہ کچھ چاہیے ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے، جو مجھے چاہیے وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگے، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تم جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا۔
मैं बस उनकी तरफ देखे जा रही थी और नफ़े में सर हिला रही थी। मुझे अफ़सोस हो रहा था कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा कि मुझे दौलत चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे बस अब वो ही चाहिए थे, और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ और नफ़रत करें। मुझे बस उनकी मोहब्बत चाहिए थी। अगले ही पल शाह जी ने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ। उन्होंने मेरा सर अपने सीने से लगाया और कहने लगे, तुम्हें पता है ना, ज़िंदगी में अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं। मैं तुम्हें बगैर ज़िंदगी के नहीं भेजता। मुझे कुछ होने लगता है जब मैं सोचता हूँ कि तुम चली जाओगे मुझे छोड़कर। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चले गए। मैं अब उनसे मोहब्बत करने लगी थी। ये सोचते सोचते मैं लेट गई और फिर मैं सो गई। उनकी मुलाज़मा आती थी और मेरे पास जूस और नाश्ता डेली लेकर आती थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जैसे ही मैंने सीढ़ी पर कदम रखा, मेरा पाँव फिसला। पता नहीं वहाँ क्या गिरा हुआ था कि मैं फर्श पर गिर गई। मेरी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। कोई नहीं आया, मुझे किसी ने नहीं उठाया। न जाने कब तक मैं वहीं चीखती रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने देखा कि मेरे पास मेरी माँ है। मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है। उन्होंने नफ़े में सर हिलाया। कहने लगे, अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह और देगा ना, वो हमारी किस्मत में नहीं था। और मैं उनकी तरफ देखने लगी। बच्चा मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, रोते हुए बोली जा रही थी। उन्होंने मुझे मजबूत बाजुओं के सहारे से लिया। कहने लगा, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बदला ज़रूर लूँगा। मैंने कहा, मुझे पता है आप मुझे छोड़ देंगे, आपके साथ ही मुझे रहना है हमेशा। आपने सिर्फ मेरे साथ औलाद के लिए शादी की थी, लेकिन मैं आपको औलाद नहीं दे सकी। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहने लगे, तुम्हें इतने महीनों में महसूस नहीं हुआ कि मैं तुम्हें टूट के चाहने लगा हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे हमेशा से पता था कि मेरी पहले वाली बीवी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने उसे टूट कर चाहा था। मैंने उसे धकेलकर उसके कमरे में डाल दिया था, लेकिन उसने तुम्हारी जान लेनी चाहिए, और इसकी वजह से मेरा बच्चा भी मुझसे दूर हो गया। फिर उसके बाद शाह जी ने मुझे दिलासा दिया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हें मुलाज़मा की हैसियत से नहीं बल्कि मालकिन की हैसियत से अपने पास रखूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और रोते हुए शाह के गले लग गई। दोस्तों, आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।